When you talk about lung cancer, it's actually not one disease. Nearly 70 to 80% of all lung cancers may be associated with smoking. Women are now beginning to smoke and smoke more. Lung cancer is a big problem in India, which we call as carcinogens. And carcinogen is a cancer-causing chemical. So is passive smoking equally dangerous? एक पेरेंट जो स्मोक कर रहा है उसके बच्चे एक्सपोज हो वेपिंग यूजिंग ई सिगरेट्स हैज़ बीन शोन टू कॉज कैंसर. सब लोग जानते हैं एंजेलिना जोली को और सबको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है फैमिलीज में रन करता है. प्रॉब्लम जो है ये लंग में घुस के लंग के अंदर के टिश्यू को पेनिट्रेट कर सकता है, ब्लड वेसल तक जा सकता है. किसी भी किस्म की खांसी जो 2-3 हफ्ते से ज़्यादा चले, ये बड़े कॉमन साइंस हैं कैंसर के. वी ऑल माइट बी हैविंग माइक्रोप्लास्टिक्स इन आवर ब्लड. ईट लोकल फूड. स्टेज 4 के जो कैंसर है टिपिकली बहुत चैलेंजिंग. कैंसर डायग्नोसिस इज नॉट अ डेथ सेंटेंस. कैंसर को लेके अवेयरनेस कम है लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है. एक दवा और एक पॉइजन में सिर्फ डोज का फर्क है. हाय, आई एम डॉक्टर देवव्रत आर्या एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिट तक. In today's episode of Problem Kya Hai, we talk to Dr. Devavrat Arya, Senior Director, Medical Oncology, Delhi, to understand why non-smokers are getting lung cancer, how dangerous air pollution really is, and what we can do to protect ourselves. So let's give Dr. Arya a warm welcome. Hello, sir. Welcome to the podcast. Hello, Welcome to the show. thank you for having me here. How are you feeling today? Feeling good and I'm looking forward to spreading Yeah. awareness for this very Yeah. difficult disease. Yeah, so this is going to be a very heavy conversation, a long podcast about lung cancer, since there is a very less awareness about it. But before we start that, I just wanted to ask you, what made you choose to work in cancer treatment, especially lung cancer? See, the branch of medicine that deals with cancer, oncology, is very challenging. A lot of our patients in India present with advanced stages. Many of them, while we can control the disease, we cannot cure them. And even for doctors, this is not only physically challenging, it's also very emotionally challenging. But I think the moot point for any doctor is to heal the patient. Healing may not be curing. And I think the driver that I have in my life is how can I help my patient get better, cure the patient as much as possible. But if I cannot cure that patient, how do I make his or her journey easier, make him live as long as possible, maintain his quality of life as long as possible, so that he is able to live many years, fulfill his dreams, fulfill his or her responsibilities. And that's my job. And since we are going to talk about lung cancer, so I just wanted to understand in the simplest language, what is lung cancer? See, cancer is any uncontrolled growth of cells and tissue. Typically, when a cell grows and in an uncontrolled fashion, it will lead to formation of a collection of cells that we refer to as a tumor. Some of these tumors are very fast growing and can spread to different organs, different parts of the body, and that is what we call as a cancer. Different cancers can arise in any and every part of our body, and lung cancer, being a major organ, is also a victim of a lot of different kinds of cancers. And when you talk about lung cancer, it's actually not one disease. So lung cancer का मतलब एक ही किस्म का कैंसर ऐसा नहीं है. हम लोग जब लंग कैंसर की स्टडी करते हैं, we realize that there are 15-20 different kinds of lung cancers. Oh. So any cancerous growth arising from the lung typically is referred to the lung cancer. लंग कैंसर के भी मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं और वहीं पे बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स के कैंसर भी लंग में स्प्रेड करते हैं. और हमारे लिए एज अ डॉक्टर जो चैलेंज होता है, ऑब्वियसली ये समझना कि कैंसर है कि नहीं. कैंसर है तो क्या ये लंग का खुद का कैंसर है, कहीं और से स्प्रेड हुआ है, और अगर लंग का कैंसर है तो किस टाइप का कैंसर है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी डिफरेंट होगा डिपेंडिंग कि किस किस्म का लंग कैंसर है. That means there is so much more we need to know about lung cancer, and that is why, Right. of course, you are here. Also, what do you think are some of the major contributors of lung cancer? I think we all know about the biggest contributor, and that is smoking. Smoking. I think modern estimates suggest that nearly 70 to 80% of all lung cancers may be associated with smoking. These figures keep on changing from one country to another. India has rural areas, has urban areas. We have different smoking patterns. In urban centers, unfortunately, the incidence of smoking is a lot. Women are now beginning to smoke and smoke more. I think that also influences the patterns of lung cancer.
But increasingly, we are realizing that we have patients who unfortunately get lung cancer, who've never smoked in their entire lives. Exactly. Sometimes families, पूरे family में किसी ने कभी smoke नहीं किया. And unfortunately, they also end up getting this disease. Yeah. And that is what has triggered the search of other potential risk factors. Or lung cancer is a big problem in India. It is the fourth most common cancer in India. We have about 85,000 new cancer cases being diagnosed every year. Numbers are increasing. If you look at the latest National Tobacco Survey, it seems कि tobacco consumption stabilize हुआ है, बढ़ा नहीं है. But at the same time, cancer of the lung is still increasing. So clearly there are other contributory factors जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है और बढ़ रहा है. हाँ, उसके बारे में बताइए कि और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑफ कोर्स स्मोकिंग इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर, राइट? बट ऐसे कौन से और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लंग कैंसर देखा जा रहा है लोगों में? I think one of the biggest risk factor that people underestimate is passive smoking. So passive smoking is a situation where you are with someone who's smoking. तो जो भी स्मोक उस बंदे ने एक्सहेल किया वो आपने इनहेल किया. Unfortunately, when a smoker exhales his breath or her breath, there are still chemicals which we call as carcinogens, and carcinogen is a cancer-causing chemical, if I have to put it simplistically. तो वो बचे हुए कार्सिनोजेंस, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स एक नॉन स्मोकर के लंग में भी जाते हैं, एंड दे एंड अप डैमेजिंग द नॉन स्मोकर्स लंग ऑल्सो. And we have realized that passive smoking is a big risk factor for lung cancer. In fact, कुछ estimates suggest करते हैं कि a passive smoker, somebody who lives in the company of a smoker, या मेरे घर में अगर कोई स्मोकर और मैं उसके साथ रहता हूँ, that is passive smoking. That increases my risk of getting lung cancer by 20 to 30%. So that's a big jump. Other risk factors, in older times you had asbestos sheets. Asbestos is still used in multiple industries. Asbestos exposure is a big risk factor for lung cancer. What is that, if you can explain it? Asbestos is a chemical that is used in the roof sheds. It's a kind of a chemical. Oh, okay. और asbestos inhalation से lung में inflammation होती है, और वो chronic inflammation की वजह से, chronic सूजन की वजह से eventually there can be a development of cancer. So asbestos used to be a big factor. Fortunately, awareness has increased, or asbestos usage in schools has been banned, but it is still used in industries and mining, and वहाँ पे lung cancer का risk है. Other risk factors for lung cancer increasingly is air pollution, and I think we'll probably refer to this later on. Radiation exposure, radon gas. Our environment has varying degree of radiation. Basements will have a lot more radon. Radon exposure leads to lung cancer. And then industrial pollutants, diesel smoke, all of that can also lead to an increased risk of lung cancer. Oh my God, all of this is somewhere going to cause us cancer. Yeah. So is passive smoking equally dangerous or more? I won't say equally dangerous, perhaps less dangerous than smoking yourself. But it is very dangerous, especially age at which where the passive smoking is happening. एक पेरेंट जो स्मोक कर रहा है उसके बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं, एंड अ यंगर एज, मोर टेंडर ऑर्गन्स, दे आर मोर वल्नरेबल टू इंजरी. एंड कहीं ना कहीं हम लोग इक्वेट कर रहे हैं कैंसर के साथ, बट पैसिव स्मोकिंग ऑल्सो लीड्स टू अदर डिजीजेस. सो नॉट जस्ट कैंसर, smoking will damage the lungs, leads to diseases like bronchitis, chronic obstructive pulmonary diseases. Smoking also increases the risk of heart diseases, hypertension, coronary artery disease, heart attack बढ़ सकते हैं. And the same is applicable to passive smoking. So passive smoking, I think, is a very serious challenge. And I think ये जो awareness campaigns हैं government की, जो initiative है, where we want to ban public smoking, I think there is a lot of sense in doing that. हमें तो एक और डर लगता है थर्ड हैंड स्मोकिंग, where you are not in company of a smoker. कोई इसी जगह था जो स्मोक करके गया, and there were fumes that were exhaled. The fumes settled on the surfaces, और मैं आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद या अगले दिन आता हूँ और मैं बैठता हूँ और फ्यूम्स डिस्टर्ब होते हैं और मैं इनहेल करता हूँ. सो डेटा नहीं है हमारे पास, बट आई थिंक देयर इज कॉमन सेंस विच सेज कि इवन थर्ड हैंड स्मोकिंग, आप किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में जाएं जहाँ पे कभी भी कोई भी फ्यूम हो, जो कभी भी स्मोक करके गया हो, वो अगर इनहेल करेंगे तो स्मोकिंग का रिस्क, कैंसर का रिस्क है. देयरफॉर क्लियरली स्मोकिंग इज द बिगेस्ट रिस्क. इनफैक्ट
बड़ी अचंभे की बात है, मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि सर हमने तो स्मोकिंग करना छोड़ दिया 5 साल पहले, तो मुझे अब क्यों हो रहा है। हमने देखा है कि जब हैवी स्मोकर्स होते हैं जो मल्टीपल सिगरेट्स दिन में स्मोक करते हैं, जब वो स्मोक करना बंद करते हैं, उनके लंग कैंसर के रिस्क को नॉर्मलाइज होते होते जहाँ पे वो उस लेवल पे आ जाए जहाँ जो कि एक नॉन स्मोकर के लंग कैंसर का रिस्क है, उसमें 20 साल लग जाते हैं। तो मतलब डैमेज इतना है, बॉडी को रिकवर करने में इतना समय लगता है कि इसमें कई साल लग जाते हैं। सो क्लियरली स्मोकिंग इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। बट स्मोकिंग को नापना आसान है, पैसिव स्मोकिंग को नापना बहुत मुश्किल है, और थर्ड हैंड स्मोकिंग को तो नापने का कोई तरीका ही नहीं। तो मैं अपने पहले अवेयरनेस कैंपेन्स में बोलता था गिव अप स्मोकिंग, जो मैं अभी भी बोलता हूँ, और मैं आप आजकल बहुत बोलता हूँ कि गिव अप फ्रेंड्स हु स्मोक, बिकॉज दे आर ऑल्सो पुटिंग यू एट रिस्क ऑफ गेटिंग दिस डिजीज। Exactly, like what are we supposed to do, like put on mask and then go out? Because you just mentioned about third hand smoking, right? I mean, what should one do about it? अगर इस तरीके से चीज़ें होंगी तो फिर like how will you know that you are going into this room and then you are inhaling it? तो क्या मतलब कुछ precautions हैं ऐसे जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक इंसान ध्यान में रख सकता है to prevent all of this from happening? आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं। वन इज़ एट अ पॉलिसी लेवल, गवर्नमेंट लेवल, वेयर हम ये कहें कि नहीं हम किसी भी पब्लिक स्पेस में स्मोकिंग अलाउ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली पॉलिसी कैन बी क्रिएटेड, दैट हैज़ टू बी एनफोर्स्ड। सो बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं जिसमें थोड़ी सी लैक्सिटी होती है, लोग कोने में जाके स्मोक कर लेते हैं। आई थिंक बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को एनफोर्स करना ज़रूरी है कि लोग स्मोक ना करें एक पब्लिक प्लेस में, एक ऑफिस में, एक बस स्टॉप पे, जहाँ पे दूसरे नॉन स्मोकर्स का एक्सपोजर होगा। दूसरा, जिन एनवायरनमेंट्स में आप स्मोकर से नहीं बच सकते हैं, आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि या तो हम अवॉइड करें या मास्क पहनें, बिकॉज देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे ऑफ प्रिवेंटिंग द एक्सपोजर। Okay, that was really some heavy information that you shared. Also, like since we are talking about smoking, तो बहुत से लोगों ने अब ई सिगरेट्स और वेप को एक अच्छा ऑप्शन बना लिया। उनको लगता है कि दैट इज़ लेस हार्मफुल कंपेयर टू स्मोकिंग। सो डू यू सी एनी ट्रुथ इन इट? See, if you ask me, is there hard evidence to say that vaping using e-cigarettes has been shown to cause cancer in humans? The answer is no, we don't have hard evidence. Now, there are two reasons behind it. हम हिस्टोरिकली अगर स्मोकिंग किस तरीके से कैंसर कॉज करती है और किस हद तक कैंसर कॉज करती है, तो उसको स्टडी करने में हमें कई दशक, डेकेड्स लग गए। इनफैक्ट 40-50 साल का रिसर्च है जो अब जाके हमें प्रूव कर पाया कि किस तरीके से कैंसर होता है। एंड आई थिंक स्मोकिंग के कैंसर कॉजेशन के कई पहलू हैं, कई फैक्टर्स जो वी आर स्टिल अंडरस्टैंडिंग। Vaping, to my mind, is a very recent phenomena. I think late 2000s, that's when vaping started, e-cigarettes started. E-cigarettes also have nicotine. स्मोकिंग और ई सिगरेट का जो एक खास फ़र्क है कि कोई भी सिगरेट में कंबशन होता है, जलता है। आप आप जलाते हैं सिगरेट को और वो जलता है, और उसके बाद जलने की वजह से भी कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जबकि ई सिगरेट में जलना नहीं है बट हीटिंग ज़रूर है। अब हम देखें, ई सिगरेट में निकोटीन है विच इज़ एडिक्टिव एंड ऑल्सो इज़ अ कार्सिनोजन विच एज आई सेड इज़ अ कैंसर कॉजिंग केमिकल। इट ऑल्सो हैज़ फॉर्मल्डिहाइड, it also has heavy metals, it also has some complex compounds that we refer to as polycyclic aromatic hydrocarbons. So basically carbon products हैं which are damaging. All of these can potentially cause cancer. इस समय जो हमारे पास एविडेंस है वो एनिमल स्टडीज़ की है। हमें ये पता है कि एनिमल स्टडीज़ में डीएनए डैमेज म्यूटेशन कर रहा है, इन्फ्लेमेशन इज डैमेज टू ऑर्गन्स वो हो रहे हैं, एंड वी नो दैट दीज आर द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स कैंसर कॉजेशन. So human studies are ongoing. We don't have a final human trial. But if you look at historically कि स्मोकिंग किस तरीके से कैंसर कॉज करता है, तो उसको देख के तो ये लगता है कि ये तो इससे भी कैंसर का रिस्क बढ़ेगा. इनफैक्ट दैट इज़ वाई some of the health authorities, US FDA has clearly said that e-cigarettes are not safe, and increasingly guidelines all across the world suggest the same, that like we have to avoid smoking, we should also be avoiding e-cigarettes, because there's no way we can say कि नहीं इनसे कैंसर नहीं. इससे भी कैंसर होगा because it has got all the properties. Right. That term that you used, carcinogens, right? So is it something like, is it tobacco that kills or gives you cancer, or is there is something inside tobacco that gives you the cancer? I think that's a great question. Yeah. So carcinogen is any
any physical or chemical factor that can cause cancer. So carcinogen, something that can generate cancer. That is the genesis of this term. And there are different categories. Let's not go there. When it comes to smoking, and मेरे से बहुत बार पूछा जाता है कि टोबैको में क्या होगा, कितने केमिकल्स होंगे. There are about 300 potentially damaging chemicals in a cigarette smoke, out of which 70 are proven to be able to cause cancer in humans individually. So it's a deadly mix of cancer causing chemicals. 70 हमें पता है, पक्का करते हैं, और कुछ 230 240 और हैं जिनका हमारे पास एविडेंस नहीं है, और शायद अब उस एविडेंस को लेके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इट्स अ कॉकटेल एंड द कॉकटेल कॉजेज कैंसर. सो इंडिविजुअल केमिकल शायद करे ना करे, डिफरेंट लेवल तक डैमेज करे. नाउ ये जो अलग अलग केमिकल है, ये अलग अलग किस्म से कैंसर कॉज करते हैं. तो 2-3 मैकेनिज्म्स हैं. वन, दे कॉज फिजिकल डैमेज टू द लंग. उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है. इन्फ्लेमेशन होता है तो बॉडी को समझ में आता है कि कुछ सेल डैमेज हुए हैं, तो उनको रिपेयर करना पड़ेगा. रिपेयर करने के लिए नए सेल बनते हैं, और कई बार ये जो प्रोसेस है ये अनकंट्रोल हो जाता है. दैट कैन लीड टू कैंसर. सेकेंड इज दे कैन पोटेंशियली डैमेज डीएनए. Oh my God. सो डीएनए डैमेज इज रेफर टू एज म्यूटेशंस. बहुत सारे डीएनए डैमेज को हमारी बॉडी रिकवर कर लेती है, बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और बूढ़े होते जाते हैं, हमारी बॉडी की ये डीएनए डैमेज को रिवर्स करने की कैपेबिलिटी कम होती जाती है, और म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होते हैं. म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होने की वजह से जो हमारा सेल है, जो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, उसकी फंक्शनिंग में इम्पैक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं जाके वो तब्दील हो जाता है एक कैंसर के फॉर्म में. ओके, तो क्या ऑफस्प्रिंग्स में भी ये कैंसर या जो भी नुकसान होता है किसी एक इंसान को स्मोकिंग करते टाइम, तो क्या वो उनके बच्चों में भी पास ऑन हो सकता है? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन. वी डोंट हैव एविडेंस एज येट कि क्या हम स्मोक करें तो क्या वो डैमेज पास ऑन हो सकता है. और इसका एक रीज़न है कि आई डोंट थिंक हमारे पास इतना डेटा है कि हम ये कहें कि जो पोटेंशियल पेरेंट्स हैं वो दोनों स्मोक कर रहे हों, और उस टाइम पे अगर कोई लेडी कंसीव करे, तो हमें पता है कि स्मोकिंग से देयर कैन बी बर्थ डिफेक्ट्स, देयर कैन बी लो बर्थ वेट्स. डज इट प्रीडिस्पोज टू कैंसर? वी डोंट हैव एविडेंस. तो इसका हमें नहीं पता. बट हमें इंटरेस्टिंगली सब लोग जानते हैं एंजेलिना जोली को, और सबको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है फैमिलीज़ में रन करता है, ओवेरियन कैंसर भी रन करता है. बहुत इंटरेस्टिंग और डिस्टर्बिंग एविडेंस ये भी है कि देयर आर सम लंग कैंसर दैट ऑल्सो रन इन द फैमिली. दैट नंबर इज स्मॉल. हमारा एस्टिमेट है कि शायद 3 से 4% लंग कैंसर्स इनहेरिटेबल हो सकते हैं, जहाँ पे किसी पेरेंट को या ग्रैंड पेरेंट को लंग कैंसर हुआ, और कुछ उसका कारण था एक डीएनए डैमेज, डीएनए म्यूटेशन, जो कि जनरेशन में चल सकता है. तो कुछ लंग कैंसर्स इनहेरिटेबल हैं. वो सारे स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं हैं, वो कुछ इंडिपेंडेंट हैं. बट अगर किसी फैमिली में बहुत सारे मरीजों को या बहुत सारे पेशेंट्स रहे हैं लंग कैंसर के, तो जो अनअफेक्टेड मेंबर्स हैं, दे हैव टू बी वेरी कॉशियस. तो मतलब देयर आर चांसेस, इसकी वजह से हो सकता है. एंड व्हाट अबाउट एक्सपेक्टिंग मदर्स, लाइक व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट दे शुड टेक? Like they should maybe wear a mask every time they are going out, और क्या precautions हैं जो उनको लेने चाहिए to avoid this? See, इस समय पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि they क्योंकि have to बहुत wear सारे a mask people every don't time. Right. take it very seriously, like you said कि third hand smoking is also there. आप Right. बाहर जाओगे और you will Right. inhale and it will somewhere cause you that problem. तो कौन से प्रिकॉशंस लोगों को जो आसपास हैं या खुद एक एक्सपेक्टिंग मदर को लेने चाहिए, जिससे कि वो लंग कैंसर या ऐसी कोई भी बीमारी को अवॉइड कर सके फ्यूचर में? देखिए, इस समय पे हम लोग थर्ड हैंड स्मोकिंग से परेशान ज़रूर हैं, बट हमारे पास रोबस्ट एविडेंस नहीं है कि थर्ड हैंड स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है. और इसके ही चलते मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ही बोलना चाहूँगा कि क्योंकि थर्ड हैंड स्मोकिंग एक फैक्टर हो सकता है, हम पैनिक ना करें, वरना तो हम बाहर ही नहीं निकलते. बट क्लियरली जो एविडेंस जिस चीज़ों का है, वो फर्स्ट हैंड स्मोकिंग, तो किसी भी एक्सपेक्टिंग मदर को या पेरेंट्स को स्मोक नहीं करना चाहिए, और सेकेंड हैंड स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए. आई थिंक हमारे लिए एक इंक्रीजिंग चैलेंज एयर पॉल्यूशन भी है. और उस एयर पॉल्यूशन के चलते तो एक्सपेक्टिंग मदर को ही नहीं, हर किसी को एडवाइजेबल है कि मास्क पहन के चलना चाहिए. हमें नहीं पता इस समय पे कि मास्क कितने प्रोटेक्टिव हैं, कितना वेरिएशन, कितना फ़र्क आएगा. द सेम इज़ एप्लीकेबल टू एयर प्योरीफायर्स, एयर फिल्टर्स. वी डोंट नो. अभी तक का जो एविडेंस है वो तो यही कहता है कि अस्थमा कम होगा, एयर पॉल्यूशन से शायद ना बच पाए. बट आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू टेक प्रिकॉशंस.
If you are going out in the more heavily polluted months, 3-4 महीने दिल्ली में और ज़्यादातर बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काफ़ी डिफ़िकल्ट जाते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी wear protective masks in those times. Yeah, because it's not even about panic, it's about, you know, awareness, like how people know very less about it. Right. Yeah, you know, with there is this lung cancer, and then you said there is also asthma that Right. is also getting commonly, that is also very getting very common. So what are the other things, what are the other risks also that are associated with it, with the So- pollution and everything? I think air pollution is a very intriguing factor that is emerging. Yeah. अब आई थिंक जो कन्वेंशनल पोल्यूशन हम देख रहे हैं उसका पैटर्न बहुत डिफरेंट रहा है. आज से 20 साल पहले vehicular pollution, diesel, older diesel engines with poor Yeah. combustion technology were big risk factors. And जो लोग दिल्ली में 90s में रहे हैं, they understand what sort of pollution it was back then. आजकल का pollution काफ़ी different है. Obviously, pollution is a very heady mix of very fine particles. We talk about PM 2.5. PM 2.5 एक बहुत छोटा पार्टिकल होता है और ये इसकी प्रॉब्लम जो है ये लंग में घुस के लंग के अंदर के टिश्यू को पेनिट्रेट कर सकता है, ब्लड वेसल तक जा सकता है. और PM 2.5 पार्टिकल की वजह से लंग में इन्फ्लेमेशन काफ़ी हो सकता है, लंग में डैमेज काफ़ी हो सकता है. एंड ये सारा डैमेज कैंसर नहीं करेगा, बट ये डैमेज खुद के अपने लेवल पे लंग के फंक्शन से काफ़ी इंटरफेयर कर सकता है. एंड आई थिंक इंक्रीजिंगली जैसे वक्त बीतेगा हम देखेंगे कि अदर देन कैंसर लंग प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी. हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि विंटर मंथ्स में हॉस्पिटल्स डील विद मेनी मोर पेशेंट्स हु कम विद रेस्पिरेटरी इश्यूज, लंग रिलेटेड इश्यूज. एंड माई फियर इज दैट विद टाइम इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज, स्पेशली खासतौर से क्योंकि आजकल के जो छोटे बच्चे हैं जिनको एक्सपोजर हो रहा है और बहुत कम एज पे हो रहा है, आई थिंक दे आर गोइंग टू बियर द ब्रांड. सो PM 2.5 can cause lung damage, lung scarring. There is also evidence to suggest that some of these particulates, diesel exhaust fumes हैं, heavy metals हैं, dangerous gases हैं, ozone है, they can also cause DNA mutations, similar to what smoking does. So DNA changes, DNA mutations होंगे, that also is a risk factor. And then you have heavy metals also that are also independently causing risk factors. So I think clearly air pollution is very similar to smoking. हम लोग बड़े डिस्टर्बिंग आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि ब्रीदिंग दिल्ली एयर इज इक्वल टू हैविंग 10 सिगरेट स्मोक्स. और सो आई डोंट नो वो कैसे क्वांटिफाई, or maybe 100. So we don't know how to quantify, but I think what is important to remember is any amount of smoking is dangerous. So any amount of air pollution is bad. So doctor, what according to you is, what are the mistakes that you think we people are making when it comes to lung cancer? और ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हमें कर लेने चाहिए जिससे लंग कैंसर का खतरा हमें ना हो? See, I think all of us underestimate the impact of exercise, food, physical fitness, sleep, and our habits in cancer and in fact disease causation. There is very strong evidence to suggest that lack of physical activity, being overweight, is a contributory factor for cancers. हमें लगता है कि anywhere between 5 to 10% cancers may be linked with physical inactivity or obesity. Addictions, we've talked about smoking. Tobacco consumption is responsible for 40% of all cancers that we diagnose every year in India. So अगर इंडिया में 16 to 18 लाख नए कैंसर डायग्नोज हो रहे हैं तो उसमें 4.5-5 लाख तो टोबैको कंजम्पशन की वजह से. देयर इज एन एडिशनल 10% which is potentially linked to alcohol consumption. So habits, tobacco consumption, alcohol consumption contribute. Lack of adequate rest certainly contributes. And then diet, what we eat. So we are into junk food, packaged food, exotic foods. I think all of them are contributing. If you look at what your great grandma or grandma used to eat, आप पूछेंगे अगर या सोचेंगे या क्या खाते थे तो probably बड़े simple food, complex sources of carbohydrates, multigrain, आटे, मैदा वैदा बहुत कम खाते थे, healthy sources of protein, good mix of fruits, green leafy vegetables, और बड़ी बैलेंस प्लेट होती थी. तो ऐसा नहीं था कि फैट ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, फैट डाइट्स नहीं होती थी. ऐसा नहीं था कि नहीं कीटो डाइट लेंगे, नो कार्ब्स डाइट लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था. अब हम increasingly we are going to packaged food, and I think one of the biggest concern that I have, again
नॉट प्रूवन एज येट कि फूड पैकेजिंग का क्या इम्पैक्ट रहेगा. वी ऑलरेडी आर टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक्स एंड माइक्रो प्लास्टिक्स and the fact that we all might be having microplastics in our blood. ये सारे जो चीज़ें हैं इनके हार्मोनल इफेक्ट्स भी हैं, फिजिकल इफेक्ट्स भी हैं. There is already some evidence to say that microplastics may be estrogenic, which is they may have hormonal effect which may contribute to an increased risk of breast cancer, ovarian cancer, uterine cancer, etc. So my general advice to my audience is एक्सरसाइज करें. एक्सरसाइज का एक प्रिस्क्रिप्शन अगर मुझे देना हो तो हफ्ते के 5 घंटे आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है. एंड दैट फिजिकल एक्टिविटी कैन बी एज सिंपल एज अ वॉक. You don't have to go to a gym, you don't have to join a running group or a cycling group. You can have a walk with a friend at a reasonable pace, and 5 hours in a week is a good enough thing. Maintain your body weight in the ideal range. Again, आपको कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. BMI, BSA बड़ा सिंपल है. हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100 इज योर आइडियल वेट. If I'm 160 centimeters and if you deduct 160 kilograms is my ideal weight. So try and achieve that as much as possible. Yeah. Eat local food. Eat seasonal food. Eat as less processed food as possible. Eat as less junk food as possible. और जब भी कुछ खा रहे हैं उसको देखिए प्लीज कि क्या खा रहे हैं, इसका क्या इम्प्लीकेशन, इसमें कितने कैलोरी हो सकते हैं, इज इट हेल्दी, इज इट अनहेल्दी. इट्स वेरी इजी टू गो टू अ शॉप, बाय अ पिज्जा, हैव अ कोक or a cold drink. I think it's very important to understand calorie consumption is also a risk factor. If you overeat calories that we often do, then that increases our weight, also increases the risk of cancer. So avoid alcohol, exercise regularly, eat mindfully. That's also very important. And avoid being overweight, avoid smoking, avoid addictions. I think that is 50% guarantee that you will not get it. Also, like since we were talking about exercise, we are putting a lot of influence into it. Then there are also, a lot of news where you can see a person who is on a treadmill, he just falls or has a heart attack. So do you see any connection between it? Like, is exercise dangerous, or there are medical checkups that needs to be done? So do you see any connection कि heart attack और ये treadmill पे जो हो रहा है, is exercise dangerous? I don't think exercise per se is dangerous, but मुझे लगता है कि ये बड़ा कॉमन फीचर है कि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा कि स्विमिंग में आप समंदर में जाके स्विमिंग करें तो बहुत मज़ा आता है, एंड आई वांट टू डू इट द नेक्स्ट डे और द नेक्स्ट वीक. हमारी एक्सरसाइज करने की कैपेबिलिटी है. कई लोग जो इन्होंने कई सालों से, अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम पे जब आइसोलेशन था, लोग घरों में बंद थे, वहाँ पे समय ज़्यादा था, तो बहुत लोगों ने एक्सरसाइज शुरू भी की. अनफॉर्चुनेटली कोविड के चलते हमारे लाइफस्टाइल में भी चेंज आया, बहुत फिजिकल एक्टिविटी लोग कर नहीं पाए, डाइट में चेंज आया. मैंने देखा काफ़ी लोगों में अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ गया बिकॉज घर पे थे. आप सडनली एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे और बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो हो सकता है बॉडी में नॉट बी एबल टू कोप अप विद दैट. आई थिंक द सेकंड फैक्टर हियर इज हम लोग एक एनुअल चेकअप में बिलीव नहीं करते. सो ऑल ऑफ अस who do not get ourselves checked regularly are already carrying these diseases that have not been diagnosed. तो ऐसा हो सकता है कि मैं अगर डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ या एनुअल चेकअप नहीं कराता हूँ, मेरे अंदर एक कोई हार्ट डिजीज़ पनप रही है जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं है. और जब मैं एक रेगुलर एक्टिविटी, एक रूटीन एक्टिविटी कर रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा, बट एक सडनली एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करने जा रहा हूँ, ट्रेडमिल पे स्पीड पे दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैनिफेस्ट हो रही है. कुछ हद तक मीडिया कवरेज का भी फ़र्क पड़ता है. ऑब्वियसली इफ समथिंग हैपन्स, इट कैचेज अटेंशन, देन वी वांट टू लुक मोर एट इट. फिर न्यूज़ भी ज़्यादा आती है. ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में हार्ट अटैक्स नहीं होते थे. मुझे लगता है कि इस समय पे हार्ट अटैक का डिटेक्शन रेट बढ़ गया है, बट देयर विल ऑलवेज बी इंस्टेंसेस वेयर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन एट अनएक्सपेक्टेड टाइम्स. If there are some of the tests that you can suggest for early detection of cancer. राइट. सो ये जो टेस्ट जो हम कहते हैं हम अर्ली डिटेक्शन के लिए, इट्स कॉल्ड एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट. सो स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये है कि एक इंसान है जिसको कोई सिम्टम नहीं है और तब भी वो इंसान वो टेस्ट करा रहा है ये समझने के लिए कि क्या कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं है जो कि कैंसर के, अर्ली कैंसर के होने की तरफ इशारा कर सकता है.
And one of the most popular tests is a mammogram, which any lady who's more than 40 years of age, especially if she is more than 50 years of age, should have a mammogram once a year. A mammogram is in a simple words, it's an X-ray of both the breasts. And पर्पज़ ये होता है कि कोई भी ऐसा कोई ब्रेस्ट में टिश्यू डैमेज है, लंप है, कैंसर है, कोई या कोई भी दूसरा ट्यूमर है, इट कैन बी पिक्ड अप अर्ली ऑन अ मैमोग्राम। जब मैमोग्राम कराते हैं तो एक ग्रेडिंग करते हैं कि क्या लाइक्लीहुड है कि कोई फाइंडिंग है और वो सस्पिशियस है, और कई बार हम उस ग्रेडिंग के बेसिस पे बायोप्सी एडवाइस करते हैं। मैमोग्राम में जब कैंसर पकड़ा जाता है तो 85% ऑफ द टाइम्स वो स्टेज 1 या स्टेज 2 होता है, और जितना अर्ली स्टेज पे हम कैंसर पकड़ते हैं उतना ही जल्दी और उतना ही सक्सेसफुल उसका इलाज होता है, और उतना ही लेस कॉम्प्लेक्स उसका इलाज होता है। सिमिलरली सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप्समेयर है। एनी फीमेल हु इज़ मोर देन 21 ईयर्स ऑफ एज, पहले 10 सालों में 3 साल में एक बार पैप्समेयर होना चाहिए, और 30 साल के बाद अगर एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV की टेस्टिंग की जाए तो 5 साल में एक बार होना चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड टेस्ट फॉर पिकिंग अप लीजन्स फाइंडिंग्स, जो कि अगले कुछ सालों में कैंसर में तब्दील हो सकता है। सो प्री कैंसरस लीजन को ही पिक कर लेते हैं और ट्रीट कर देते हैं। उसी तरीके से लंग कैंसर के लिए एक जो नया टेस्ट आ रहा है वो है लो डोज CT स्कैन। सो CT स्कैन हम लोग सब जानते हैं, एक स्कैन है, रीजनेबल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर होता है, बट बहुत हाई सेंसिटिविटी से, बहुत हाई एबिलिटी से लंग की गड़बड़ों को, लंग की अनोमलीज को, लीजन्स को पिक करता है। लो डोज CT स्कैन में कम रेडिएशन है, और हमने देखा है कि जो लोग हैवी स्मोकर्स रहे हैं, जिन्होंने 10-15 साल स्मोकिंग की है और जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है, उनको एक एनुअल लो डोज CT स्कैन करना चाहिए, बिकॉज लो डोज CT स्कैन ऐसे लीजन्स को पिक कर सकता है जो कि कैंसरस हो और बहुत छोटे हों, जिसकी वजह से कोई सिम्टम ना आ रहा हो, जिसकी वजह से खांसी ना हो रही हो, सांस ना फूल रही हो, या बलगम में खून ना हो। तो ऐसे लीजन्स पिक हो जाते हैं जो बायोप्सी करके या तो सर्जरी करके या रेडिएशन करके ठीक हो जाते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर इज़ इंक्रीज्ड अवेयरनेस कि अगर कोई हैवी स्मोकर है या पिछले 15 सालों में हैवी स्मोकर रहा है और 50 से ज़्यादा उम्र है, तो एनुअल लो डोज CT स्कैन के बारे में आप अपने डॉक्टर से, अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट से, फिजिशियन से बात करें। और वहीं पे डॉक्टरों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व है कि एक मोडालिटी अवेलेबल है जो कि बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है इंडिया में। हमने देखा कोविड के टाइम पे हमने बहुत सारे कैंसर्स अर्ली पिक किए, और जब हमने उसके कारण को समझने की कोशिश की तो हमें समझ में आया कि कोविड के चलते जो लंग में चेंजेस थे उनको बेटर पिक करने के लिए CT स्कैन बहुत हो रहे थे, और हमने बहुत नए, बहुत छोटे लीजन्स पिक किए जो कि बहुत सक्सेसफुली ट्रीट हो गए। एंड आई थिंक वो एक एग्जांपल है जो कि लो डोज CT स्कैन की एबिलिटी टू पिक लीजन्स अर्ली को दर्शाता है कि आप CT स्कैन करेंगे तो बड़े सारे ऐसे लीजन पिक करेंगे जो कि कैंसर हैं और सिम्टम नहीं कर रहे हैं और क्योरेबल है। ऐसे कौन से साइंस हैं दैट वन शुड लुक आउट फॉर? जो कॉमन साइंस जो हम एट्रीब्यूट करते फॉर हैं, समबडी हु डोंट नो अ लॉट अबाउट इट, तो Right. कैसे उनको पता चलेगा कि अब मुझे जाके अपना टेस्ट करा लेना चाहिए या मुझे दिखा देना चाहिए, क्योंकि ये लंग कैंसर का एक कारण हो सकता है? सो किसी भी किस्म की खांसी जो 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, अगर कोई स्मोकर है तो आपने देखा होगा कि स्मोकर्स वैसे ही खांसते रहते हैं। तो अगर स्मोकर में खांसने के कैरेक्टरिस्टिक में चेंज हो गया कि पहले थोड़ी बहुत खांसी आती थी, सडनली ज़्यादा हैवी लंबी खांसी चल रही है, तो किसी भी किस्म की खांसी जो 2-3 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, आवाज़ में बदलाव, सडनली आवाज़ फटने लग जाए, सांस में दिक्कत, सांस फूलने लग जाए, पहले जो एक्टिविटी में सांस नहीं फूलती थी अब उन एक्टिविटीज़ में सांस फूलने लग जाए, बलगम है, स्पूटम हम कहते हैं बलगम को, खांसी की बलगम निकला उसमें खून आना, ये बड़े कॉमन साइंस हैं कैंसर के। वहीं पे कई बार बड़े वेक साइंस होते हैं। कई लोगों को, जो हमारे पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं कैंसर के, उनको कोई सिम्टम नहीं होता, बस कि थोड़ी थकावट या कभी कभार वज़न कम होना, बड़े नॉन स्पेसिफिक साइंस हैं। और हमने देखा है कि क्योंकि ये बड़े नॉन स्पेसिफिक साइंस हैं, स्टैंड आउट साइंस नहीं है, तो बहुत लोग इन सिम्टम्स को इग्नोर करते रहते हैं कई महीनों तक। तो मैं अपने ऑडियंस को, अपने पेशेंट्स को, फैमिलीज़ को यही बोलता हूँ कि आपके कोई भी लक्षण हो, और ख़ासतौर से अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो खांसी, आवाज़ में बदलाव, बलगम में खून आना, सांस फूलना, या नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, थकान, वेट लॉस,
2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। आई एम श्योर डॉक्टर्स कुछ ना कुछ टेस्ट कराएंगे और ये एक सीरियस डिजीज़ की तरफ इशारा कर सकता है। और सीरियस डिजीज में एक कैंसर तो शामिल है ही, बट दूसरे और सीरियस डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से सिम्टम्स आ सकते हैं। टीबी की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शंस की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, उनकी वजह से भी हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं, सार्कोइडोसिस, उनकी वजह से भी हो सकता है। So these are the signs that should trigger a medical consultation. So one should get themselves checked. Checked. More often, right? Also, doctor, when we speak about cancer, you know, it's something that scares a lot of people. So, of course, everybody wants to know. There's this one basic question like, is cancer curable? क्योंकि लोगों को बहुत डर लगता है. So if there is something that you want to tell our audience कि ये क्योर हो सकता है या कितनी जल्दी हो सकता है, you know, just a message of hope or something. Right. See, the effectiveness of treatment in cancer is directly related with the stage. So हमने देखा है कि जहाँ पे स्टेज 1 कैंसर की बात करें तो क्योर का चांस 70 से 80% है। स्टेज 2 कैंसर्स की बात करें तो ये चांस 60 से 70% है। स्टेज 3 के कैंसर करीब करीब 40 से 60% केसेस में क्योर हो जाते हैं। स्टेज 4 के जो कैंसर्स है टिपिकली बहुत चैलेंजिंग है और हमने देखा है कि ज़्यादातर केस में हम क्योर नहीं कर पाते बट काफ़ी लंबे समय तक कंट्रोल कर पाते हैं। और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो कुछ स्टेज 4 कैंसर्स भी क्योर हो जाते हैं, बट अगर नंबर पे मुझे रखना पड़े तो शायद 10% या 20%। जिसका मतलब ये हुआ कि अर्ली डिटेक्शन, कैंसर को जल्दी पकड़ें, जल्दी स्टेज पे पकड़ें, उतना क्योर का चांस बढ़ जाता है। बीइंग अवेयरनेस ऑफ सिम्टम्स, आप पकड़ेंगे तभी जब आपको सिम्टम है और आप सिम्टम को लेके किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। Ensuring that you protect yourself as much as you can, not smoking, not exposing to second-hand smoke, avoiding a healthy lifestyle, they are key factors. वहीं पे parallelly, adoption of early detection techniques like low-dose CT scan in lung cancer or a mammogram in breast cancer or a pap smear in cervical cancer will make a difference. And lastly, I think science is evolving, the field of oncology is evolving. आपने पूछा था कि भाई आपको क्यों इसकी फील्ड अच्छी लगती है, तो एक कारण ये है कि कैंसर की फील्ड में सबसे ज़्यादा रिसर्च चल रहा है इस समय और हर साल हर कैंसर के लिए एक आध दो नई दवा आ रही हैं। बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, बहुत एवोल्यूशन के लिए स्कोप है। हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी भी लिमिटेड है, हमें और अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, और बेहतर दवाइयों की ज़रूरत है, और बेहतर और सेफ़र दवाइयों की ज़रूरत है। लंग कैंसर में जहाँ पे एक समय सिर्फ सर्जरी होती थी या रेडिएशन होता था, पिछले कुछ दशकों में कीमोथेरेपी का रोल आ गया। कीमोथेरेपी एक ऐसी दवा है जो इफ़ेक्टिव तो है पर काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी देती है। उसके चलते टारगेटेड थेरेपीज़ का इन्वेंशन हुआ और करीब करीब आज की डेट में भी जो एडवांस लंग कैंसर के मरीज़ हैं उनमें 20 से 25% में किसी ना किसी किस्म की टारगेट थेरेपी का उपयोग हो जाता है, कीमो से बच जाते हैं। इम्यूनोथेरेपी का यूज़ हुआ, तो फील्ड इज़ मूविंग फॉरवर्ड, there's a lot of research happening. We are seeing that even patients with stage 4 advanced lung cancers are living for many years, not months, not weeks, not days, many years. And patients with stage 1, stage 2 and also stage 3 cancers are getting cured. So cancer diagnosis is not a death sentence. कठिनाई ज़रूर है, बीमारी है तो कोई भी बीमारी कठिन ज़रूर होती है, बट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। Also, one question that I wanted to ask is कि कैंसर को लेके अवेयरनेस कम है लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है उसके अराउंड। बहुत सी रील्स ऐसी वायरल होती हैं जहाँ पे ये DIY ड्रिंक है, इसको पीने से कैंसर ख़त्म होता है। नवजोत सिंह की वाइफ ने भी कुछ बोला था कि दाल को अगर आप ऐसे भिगा के अगर खाओ तो फिर कैंसर नहीं होता है, ऑयल की जगह घी में खाना बनाओ तो कैंसर नहीं होता है। तो इज़ देयर एनी कनेक्शन और इट्स जस्ट अ मिथ कि कैंसर को ट्रीट करने का एक ही तरीका है, दैट इज़ टू गो टू डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड एंड एवरीथिंग, या ये DIY ड्रिंक्स और ये सारी जो चीज़ें पॉपुलर हो रही हैं, तो इज़ इट ट्रू और डू यू सी एनी कनेक्शन? बहुत अच्छा सवाल है। मैं कल रात में मैंने न्यूज़ का ऐप खोला हुआ था जिसपे अलग अलग सोर्सेज से न्यूज़ आ रही थी, तो जब एक न्यूज़ पढ़ी तो मैं उसको देख के काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। बट जब मैंने सोर्स उसका देखा तो मैंने कहा ये तो सोर्स क्रेडिबल ही नहीं है, इस सोर्स की क्या वैल्यू है, क्या गारंटी है ये जो कह रहे हैं वो सही है। और कई बार ऐसा होता है कि हम न्यूज़ के सोर्सेज को जब इन्वेस्टिगेट करते हैं हमें पता लगता है कि ये तो फेक न्यूज़ है, क्रेडिबल सोर्स नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो टू द मोर क्रेडिबल सोर्सेज ऑफ न्यूज़। द सेम इज़ एप्लीकेबल टू एनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन। जब आप किसी भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो आप प्लीज़ उसको देखिए कि ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, कौन दे रहा है।
कि देने वाला क्या डॉक्टर है, देने वाला एक ऐसा इंसान है जो कि खुद मरीज रहा है, या केयर गिवर है, या किसी ने कुछ रैंडम चीज़ कहीं पढ़ी, देखी, समझी और अपनी समझ के हिसाब से मैसेज डाल दिया। अनफॉर्चुनेटली इस समय न्यूज़ को डिसेमिनेट करना, इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना बड़ा आसान है, और उसी इन्फॉर्मेशन को छान के, फिल्टर करके सही, करेक्ट, रिलायबल इन्फॉर्मेशन को आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल होते जा रहा है। मैं जनरली अपने पेशेंट्स को या अपने ऑडियंस को ये एडवाइस देता हूँ कि द बेस्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर मेडिकल वेबसाइट्स। अब कैंसर के कई सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो क्रेडिबल हैं, कुछ इंडिया बेस्ड हैं, कुछ विदेशी हैं। आप वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन लें। एनेक्डोटल न्यूज़ तो आपको हर जगह मिलेगी। एनेक्डोटल का मतलब कि कोई इंसान है जो 100 साल तक स्मोक करता रहा, उसको कैंसर ही नहीं हुआ, तो ये एनेक्डोटल एग्जाम्पल है। एक आध एग्जाम्पल हमेशा ऐसे मिलेंगे। आप उनका एग्जाम्पल लेके हर कोई स्मोकिंग करने लग जाए तो हम सब जानते हैं कि क्या होगा। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एट क्रेडिबल न्यूज साइट्स। दूसरा, आजकल रील्स का ज़माना है, क्लिप्स का ज़माना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लिसन टू द एंटायर मैसेज। अब मिस्टर सिद्धू और उनकी वाइफ का आपने जिक्र किया, अगर आप उनके एंटायर मैसेज को सुनेंगे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया, उन्होंने कीमोथेरेपी नहीं कराई। इनफैक्ट उनका मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज था। उन्होंने कहा कि हमने गवर्नमेंट सेंटर में जाके थेरेपी ली और गवर्नमेंट सेंटर्स में भी अच्छा ट्रीटमेंट होता है, और साथ में उन्होंने लाइफस्टाइल चेंजेस किए। मुझे लगता है लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और हमारी इनहेरेंटली जो डाइट है वो काफ़ी वेस्टर्नाइज हो गई है, काफ़ी अनहेल्दी है। और अगर हम हेल्दी हैबिट्स इनकलकेट कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। बट ये कहना कि अकेले डाइट से ही कैंसर ठीक हो जाएगा, या DIY ड्रिंक से, ये सही नहीं है। मैं इससे, अगर ये इतना सिंपल होता तो शायद कैंसर इतना बढ़ता ही नहीं। तो ऐसी कोई ड्रिंक नहीं है, देयर इज नो ड्रिंक, कोई जीरा वाटर इज नॉट गोइंग टू सेव यू फ्रॉम। एंड इंक्रीजिंगली देखिए, हम फायदों पे फोकस करते हैं, उन्हीं चीज़ों के नुकसान भी होते हैं। एक दवा और एक पॉइजन में सिर्फ डोज का फ़र्क है। आप वही दवा अगर हायर डोज में देंगे वो कैन बी पॉइजनस। सो एवरीथिंग विल हैव अ पॉजिटिव बेनिफिट, विल ऑल्सो हैव अ नेगेटिव बेनिफिट। अनफॉर्चुनेटली वी फोकस ऑन द पॉजिटिव्स, वी इग्नोर द नेगेटिव्स, और वी डोंट गिव इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड द नेगेटिव्स। वहीं पे मैं फैट डाइट्स में हमें लगता है कि नहीं, कुछ चीज़ें हम अवॉइड कर दें, निकाल दें तो काम चलता रहेगा। हमारी डाइट हैज़ इवॉल्व ओवर मैनी सेंचुरीज, एंड जो एक बैलेंस डाइट हमारी बनी है वो सेंचुरीज के एवोल्यूशनरी नॉलेज के बेसिस पे बनी है। तो सडनली चेंज करना है। क्योंकि रील्स तो लाइक यू सेड कि हम उतना ही पार्ट उठाते हैं जितना हमें Right. ठीक लगता है। वी डोंट गो फर्दर कि नहीं अब देखते हैं इसमें आगे क्या बोला है क्या नहीं। बिकॉज अगेन आई विल मेंशन वन रील वेयर अ गाय wasn't a certified nutritionist or anything, but he just mentioned randomly कि जो दादी नानी के ज़माने से जो खाना खाया जा रहा है, इवन दैट हैज़ अ लॉट ऑफ कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टीज़, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं थी। जो खाना आपने बोला कि बहुत सिंपल खाते थे, लेकिन उनके लिए ये है कि उनको नॉलेज ही नहीं थी, और उन लोगों को भी बीमारियां हो रही हैं आजकल। तो क्या मतलब, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? See, as long as we are there, diseases will be there. या तो आप इस तरीके से देखें तो कुछ ममीज भी मिले हैं जिसमें ट्यूमरस ग्रोथ थी। या तो द डिजीज हैज एग्जिस्टेड एवरी टाइम। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज विल ऑल्सो इवॉल्व विद टाइम, एंड देयरफॉर बहुत सारी चीज़ें जो हमें पहले नहीं पता थी कि कैंसर कॉज कर सकती है, अब हमें समझ में आता है कैंसर कॉज कर रही है। और ये तो एवोल्यूशन है, और नॉलेज चेंज होगी, नॉलेज बढ़ेगी। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कुछ प्रैक्टिसेस पहले हम ऐसी करते होंगे जो शायद डिजीज़ को कंट्रीब्यूट करती होंगी, Right. और हमें उन्हें बदलने की ज़रूरत है। बट जब हम डाइट के लिए स्पेसिफिकली बात करते हैं, बहुत कम चीज़ें इतनी रेडिकली चेंज हुई है जितना ही हमारा लाइफस्टाइल और हमारी डाइट चेंज हुई है पिछले 50 से 100 सालों में। और इतना रेडिकल जो चेंज है वो सर्टेनली हार्मफुल है, और वो हम कैंसर की फील्ड में नहीं, हम दूसरी फील्ड्स में, चाहे वो हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो किडनी डिसऑर्डर्स हो, हम उसका इम्पैक्ट इन सभी फील्ड्स में, सारे हेल्थ रिलेटेड स्फेयर्स में देख रहे हैं। तो क्लियरली जो बदला है वो अच्छा नहीं हुआ है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़े बेसिक्स पे जाएं, कि जो पहले हुआ करता था 2 जनरेशन पहले, 3 जनरेशन पहले, कुछ उनमें से सही चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। Thank you so much. That was a really insightful chat with Dr. Arya on lung cancer in non-smoker.
It's a reminder that lung cancer can affect anyone, not just smokers, and we need to take pollution, lifestyle, and early signs seriously. If you found today's episode helpful, share it with someone who needs to hear it. You are listening to Problem Kya Hai only on FitTak. Stay healthy, stay informed, and keep watching FitTak.